So hi my dear viewers, आज हमारे साथ है अनमोल पांडे. Anmol is already a businessman who is from Kanpur and now he stepped into a new journey which is known as a CPA journey, and most important thing, he cleared his PAR exam of CPA. So congratulations Anmol. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thanks to you. Thanks to the whole AKPIS team. Thanks to Shammi sir. Thanks to Aman ma'am. And special thanks to Gurmeet sir. He is very supportive man. He is also very supportive man. And regarding administration stuffs, so Shami sir helped me a lot in everything, in clearing my basics. Because in the FAR exam, the most important thing is your basics should be cleared. You should be strong in your basics, because because CPA is not basic level exam. It's an advanced exam of US, not of India. So what the thing is, like in our traditional exams of India, like CA and all, your theoretical knowledge is tested. But in CPA, what is tested is your practical application of that knowledge, like in simulations and all. So Indian exams you can clear. If your concepts are not 100% clear, then also there is probability that you can clear the exam. But in CPA, you can only clear the exam when your concepts are totally clear. And for that, your basics need to be very clear. For that, Shammi sir helped. I would say he's the best mentor for, clearing the basics, because without foundation, you cannot build a building. You cannot make a building. So thanks to the whole team of AKPIS, especially Shammi sir. Yes, now you can proceed. Whatever was in my heart, I just told you. Now you can ask me the specific questions. That's why we conduct interviews now, so that you can say whatever is in your mind, in your heart. Okay? Yeah. Yes, and more as proceeding further, as you just said, key concept. I think, and this is the whole mindset of AKPIS also, कि हमारे स्टूडेंट्स के बेसिक्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए. अगर हमारे स्टूडेंट्स के बेसिक क्लियर है तो उनका मेन करिकुलम ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा और वो अपने एग्जाम में डेफिनेटली वो पास करेंगे. व्हाट यू थिंक कि जो बेसिक्स, जो फंडामेंटल की क्लासेस हम हमारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं, विच इज एन एड ऑन, इट इज लाइक अगर हम चाहते हैं तो हमसे मेन कोर्स भी सेल आउट कर सकते हैं, बट लाइक इट्स एन एड ऑन जस्ट फॉर द स्टूडेंट बेनिफिट. व्हाट यू थिंक कि हाउ हेल्पफुल इट इज टू क्लियर द मेन एग्जाम? Ma'am, as I said just few minutes back, foundation is very important for building. If you are building, foundation is very important. Otherwise, you can't construct a building on that land. So in the same way, if you are giving any exam, and I would not say any, but for FAR at least, because your previous knowledge is also tested in FAR. Suppose if you are preparing for regulation in TCP, it's totally new. If you are not from accounting background, you can give regulation, you can give TCP, you can easily clear them. But in accounts, in financial reporting, what happens is you need to be very clear about debit and credit. You are required to understand trial balance. What is trial balance? How entries are done in trial balance? What are journal entries? How adjusting journal entries are made? And I've seen that many of my colleagues don't know the year-end, adjusting entries. So these all are very important, and it is required that you should know them. So your basics should be very strong, and Shammi sir is, he is helping in a very good way. Nice. बहुत अच्छे से वो समझा रहे हैं each and everything. बेसिक्स बहुत जरूरी है, और जो आपकी फंडामेंटल क्लासेस हैं, एक्चुअली मैं थोड़ा सा उसमें बिजी हो गया तो मेरे दिमाग से उतर गया जो मैं बोल रहा था. तो फंडामेंटल्स बहुत जरूरी हैं. और फंडामेंटल्स जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसका कि स्टडी गैप हो गया है और उसको डायरेक्टली वो चीज पढ़ाने जाने लगे कि डायरेक्टली वो उस पे आ जाए, डायरेक्टली चैप्टर्स पे, तो वो नहीं समझ पाएगा. सो उसके लिए फंडामेंटल्स बहुत जरूरी है, जिसके लिए जो AKPIS की फंडामेंटल क्लासेस हैं
वो बहुत अच्छी हैं। आई वुड से जो व्यक्ति या जो इंसान जिसका कि स्टडी गैप हो चुका है, उसको फंडामेंटल क्लासेस बहुत हेल्प करती हैं। इवन मेरा भी स्टडी गैप हो गया था, तो मुझे भी फंडामेंटल्स ने बहुत हेल्प किया, और दे आर वेरी हेल्पफुल, दे आर रियली हेल्पफुल। और उन्हीं की वजह से शायद मैं आगे के अपने एडवांस कंसेप्ट भी क्लियर कर पाया, मुझे इजिली समझ में आई सारी चीजें। आई होप आई Um, आंसर्ड इट। yes. And more like you are saying about study gap. So study gap एक ऐसी चीज है कि अगर हमारी एक बार पढ़ाई छूट जाती है या हम उसे छोड़ देते हैं, तो उसके बाद में उस चीज को दोबारा अपने अंदर डेवलप करना एक काफी बड़ा टास्क होता है। और एक यस, इतने यस, बड़े प्रोफेशनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना तो उससे भी बड़ा चैलेंज होता है। व्हाट डू यू थिंक कि यस, हाउ एग्जैक्टली। शमी सर गाइडेंस हेल्प यू इन दिस स्टडी प्लान एंड इन ऑल द वेज कि आपका ये स्टडी गैप जो था वो प्रॉपर तरीके से हाइड हो गया और आप आपकी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाए उनके स्टडी प्लान्स के थ्रू, उनके गाइडेंस के थ्रू। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैम, पहले तो मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा, इफ यू आर क्लियर विद योर व्हाई, देन यू विल इजीली एबल टू फिगर आउट हाउ। तो स्टडी गैप अगर हुआ है और आपको आगे क्या करना है, आपको ये मालूम है कि क्यों करना है, आपको वो रीजन स्ट्रांग है आपका, अगर तो आप अपने आप कैसे करना है उस चीज को आप फिगर आउट कर लोगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगा, अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी कलीग है मेरा, वुड नॉट से स्टूडेंट बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, सो अगर कोई भी कलीग है या जो सीपीए करना चाहता है, तो पहले उसको अपना वाई पता होना चाहिए कि मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस। उसके बाद वो हाउ अपने आप डेवलप कर लेगा। अब उसके बाद रोल आता है मेंटर का, कि अब आपको वाई तो पता चल गया कि यार हाँ मेरे को करना है, मेरे को अपना जो करियर है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाना है, चीजों को और बेटर तरीके से करना है, बट यहाँ पे अब आप अकेले तो नहीं कर सकते। नाउ यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड अ मेंटर लाइक शमी सर, आई वुड से। वो आपसे फर्स्ट डे से बात करेंगे, और मेंटर का ये काम होता है कि वो आपको खुद से समझ के ये समझाए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो और आपको किस तरीके से अपनी स्टार्टिंग करनी है या शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे शम्मी सर का एक रोल बहुत अच्छा है कि वो स्टार्टिंग में अपने स्टूडेंट से खुद बात करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग वो टाइम टेबल बनाते हैं। उसके बाद वो खुद कहते हैं कि डोंट स्टार्ट फ्रॉम द मींस, आप लोग ग्लैम प्रोवाइड करते हैं, तो ही नेवर से कि स्टार्ट फ्रॉम ग्लैम एंड ऑल। वो पहले कहते हैं सी माय फंडामेंटल लेक्चर्स। सो जैसे आप फंडामेंटल लेक्चर्स देखते हो, तो जब आप अपने रिव्यू प्रोवाइडर, जैसे आप लोग ग्लैम प्रोवाइड करते हो, हमारे एकेपीआईएस में ग्लैम प्रोवाइड होता है, तो आपको वो चीजें इजी लगने लगती हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्टली जंप कर जाओगे ग्लैम पे या और भी रिव्यू प्रोवाइडर्स हैं लाइक बेक, वाइली, रॉजर, तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो फंडामेंटल्स के लिए सर ने जो अलग से क्लासेस दे रखी हैं, दैट आर वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। और अगर उनको कर लिया, आई थिंक 40 आवर्स की क्लास है, 40-50 आवर्स की क्लास, अगर उसको किसी ने भी कर लिया, तो जो गैप है टाइम का, जो आप कह रहे हो वो कैसे फुलफिल होगा, तो एक्चुअली वो गैप में सिर्फ एक ये डर होता है कि मैं कैसे स्टार्ट करूंगा इस स्टडी को, ये एडवांस लेवल की स्टडी है, मैं कैसे स्टार्ट करूंगा। तो वो जो गैप होता है, उसका जो डर होता है, वो ये 40 आवर्स की क्लासेस फुलफिल कर देती है, और अपने आप आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। और मैं फिर से कहूंगा, आपके पास पहले स्ट्रॉन्ग वाई होना चाहिए, तभी आप अपने हाउ को फिगर आउट कर पाओगे। और फिर तो एकेपीआईएस है ही सारी चीजों की हेल्प करने के लिए, आई वुड से। Definitely, we are always there for our all students out there. अगर मैं अब या यहाँ से अभी हम आपके why and how पे डिस्कस कर रहे हैं, so I just wanted to know इस how को पॉसिबल करने के लिए एक मेंटोर का क्या रोल होता है एंड कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है? मैम, आई वुड से कि मेंटर के बिना, लाइक सपोज मैं कानपुर में हूँ एंड यू आर इन चंडीगढ़, सो एक प्रॉपर जर्नी को कंप्लीट करने के लिए
मुझे एक ऐसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ेगी जो मुझे वहां तक आसानी से उस फासले को कम कर दे। अब मेरे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं पैदल भी जा सकता हूँ, जो कि शायद मैं कानपुर से चलना चालू करूं तो मैं महीनों लग जाए मुझे चंडीगढ़ पहुंचने में। दूसरा ऑप्शन मैं बस से भी जा सकता हूँ, एक ट्रेन से भी जा सकता हूँ, फ्लाइट से भी जा सकता हूँ। तो जितना अच्छा आपका ट्रैवल का जो साधन रहेगा, उतनी अच्छी आपकी जर्नी होगी। तो यहाँ पे ट्रैवल का साधन से मेरा मतलब क्या हुआ? मेंटर। मेंटर आपका एग्जाम नहीं देता है, मेंटर बस आपका हाथ पकड़ के चलता है, वो आपकी जर्नी को इजी करता है। तो वहां पे मेंटर का सिर्फ ये रोल है कि मेंटर, शम्मी सर इज लाइक अ फ्लाइट। मैंने जितने चारों ऑप्शंस दिए हैं, तो फ्लाइट सबसे इजीएस्ट वे होता है और सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है। तो ही इज लाइक अ फ्लाइट। तो जैसे फ्लाइट में आप कंफर्टेबली ट्रैवल कर लेते हो, तो वैसे ही वो इतने अच्छे मेंटर हैं कि अगर आप उनके साथ अपना काम कर रहे हो, उनके साथ पढ़ाई कर रहे हो, वो आपको हर चीज बता रहे हैं, तो आपकी जो जर्नी है वो काफी इजी हो जाती है और काफी मींस आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। वहीं पे अगर आपने हाउ तो वाई तो अपना जान लिया, लेकिन अब जाना कैसे आपको ये नहीं मालूम है, आप रोड से जा रहे हो बस, तो वो जर्नी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मेंटर का ये काम होता है कि किस तरीके से वो आपको वहां पे ले जा रहा है, किस तरीके से वो आपको गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से वो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द मेन थिंग। Very true, very true, very true. And more as proceeding further, wanted to know कि जैसे सर हैं तो उनके like he is already a CA, he is also a CPA. तो उनके CA या CPA की जो credentials हैं, जो designations हैं, वो उनमें already अपने students को देने के लिए काफी ज्यादा knowledge add on कर देती है. But additionally एग्जैक्टली। they have 12 to 15 years of teaching experience. So या वो अपने या स्टूडेंट्स को क्लासेस में कभी रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं, कभी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं. हाउ दीज थिंग्स हेल्प्स यू to clear your main exam? मैम एक्चुअली द थिंग इज, स्टार्ट करना इजी होता है, बट उसको सस्टेन करना और एंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए टाइम टाइम पे डोज मिलनी बहुत जरूरी है, और वो डोज सिर्फ हमारा मेंटर दे सकता है, वो हमारे मेंटर दे सकते हैं। तो जो वो मोटिवेशन, मैं मोटिवेशन नहीं कहूंगा, वो सच बोलते हैं। तो जो उनका एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो उस एक्सपीरियंस से जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जैसे, जिन्हें की कुछ भी नहीं मालूम है, वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरे को ये एग्जाम पास करना है, तो वो एक्सपीरियंस, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे एक्सपीरियंस, वो हमारे साथ एड ऑन हो जाता है। अब उन्होंने बताया कि ये चीजें इंडस्ट्री में चल रही हैं, या यू विल गेट अ डिसेंट पैकेज आफ्टर कंप्लीटिंग विद योर सीपीए, यू आर हैविंग दीज एंड दीज ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग विद योर सीपीए। तो ये सारी चीजें उस डोज का काम करती हैं, जो कि हमको उस जर्नी में सस्टेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और यही एक स्टूडेंट अपने मेंटर से एक्सपेक्ट भी करता है। सो डेफिनेटली वो हमेशा बच्चों का साथ देते हैं, आई वुड से। और इसी वजह से शायद मैं भी आपके सामने आज इंटरव्यू दे रहा हूं। वेरी ट्रू. तो ये मोटिवेशन बहुत जरूरी है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है, और वो हमेशा सच बोलते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे लोग कहते हैं कि 6 महीने में सीपीए बना देंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। It's not possible for an Indian student who has completed his graduation from Indian university कि वो 6 महीने में कैसे सीपीए बन सकता। तो वो बताते हैं कि अगर आप इस बैकग्राउंड से हो तो इतना टाइम लगेगा दोस्त, इतना याद रख के चलना। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड इज डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन। These three things are very important. That's it. Right. So Anmol, in AKPS Institute, we provide students so many benefits. We provide student classes, recorded backups, and MCQ portals, as well as before exam, we always conduct 2 to 3 mock tests of our students. What do you think कि Yes. ये जो mock test सर अपने students को conduct कराते हैं just to check out if he is exam ready or not, is it truly Yeah. beneficial for you in main examination? Uh, Definitely, ma'am. Before I'm having habit to give examples. So I'm just giving you an example that before going to play an international ODI, players also do net practice. Without net practice,
your main match is not possible, whether you be Virat Kohli or Sachin Tendulkar. So in the same way, those 4 hours which we give in our Prometric Center are like that one day match only. So you cannot directly go directly onto the one day match. तो आपको वहां पे कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है, और थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए. उसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, और जो मिनी क्विजेज होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है. जो आपने पूछा कि जो बैकअप होता है एलएमएस पे, कभी कभी क्या होता है कि कोर्स बहुत वास्ट होता है और हमारी मेमोरी क्या होती है, जैसे हम सेकेंड या थर्ड चैप्टर पे गए तो कहीं ना कहीं हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से ब्लर होने लगता है. तो एलएमएस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम जाके उस चीज को दोबारा देख सकते हैं, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 1 टाइम देख सकते हो और या ओनली 2 टाइम्स देख सकते हो. आप अपनी जर्नी में आप कभी भी उसको देख सकते हो, तो वो बहुत हेल्पफुल है. और मॉक टेस्ट तो बिल्कुल देने चाहिए. उससे 2 चीजें होती हैं, एक तो आपको ये पता चलता है कि आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है, दूसरा सबसे बड़ी चीज आपको ये पता चलता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे. Very true. Apart from this, Anmol, I wanted to know one more thing. कि आप सर की Yeah. टीचिंग स्टाइल में क्या बोलना चाहोगे? What you want to say? No, How it definitely he is very good in teaching. His style, his way of teaching is very good because he is holding 2 very reputed degrees. One is, highly reputed degree of India, that is CA, and one is highest reputed degree of in accountancy field of USA, that is CPA. So it's obvious, I'm no one to say about his teaching style. His teaching style is very good. He explains very well, and the main thing is he does not start directly to an advanced level. First, even after completing his 40 hours basic classes, fundamental classes, even though when he starts teaching the chapters of GLIM, the review provider, he again teaches those basic concepts again. So these all things make your preparation very easy. And the main thing is, if you want to talk to him, you can just drop a mail to the team, and in 2-3 days, the team connects us to the sir. So if we are having any doubt, he is directly there for us. So I'm no one to comment on his teaching style, but if you are asking, I would say it's awesome. It's awesome. It's very good, because I know many of the institutes, they are providing their LMS, they are providing their classes, but no mentor is there to talk to those students. But he's always with us to talk to us. Yeah. Definitely. It's all my personal experience which I'm telling to you, and with gratitude, and I'm very, heartfelt. True. Anmol, I wanted to ask you one more thing. Before joining to AKPIS, हमने आपसे काफी सारे promises किए होंगे that AKPIS will provide you this, that, and a lot of things. But do you think कि the day you enroll, वो एक promise like recorded backups, GLAM software, doubt solving classes, study plan, and much more. Do you think कि वो एक promise AKPIS ने अपनी तरफ से हर चीज को fulfill किया at their best? Ma'am, from my childhood, I'm listening one thing: rules and promises are made to be broken, but AKPIS is exception, I would say. Here, the promises which had been made to me at that point of time when I joined the institute, all the promised are fulfilled, and yet they are also, and even now they are also fulfilling them. So all the promises which you people, promise to me, all the AKPIS is institute of words. So whatever you told me, whatever you promised me, it was 100% correct. That's it.
As I wanted to ask, and even my viewers, जिनके काफी जल्दी उनके सीपीए के एग्जाम वो देने जाने हैं, just tell me something about your Prometric Center experience and what type of things you have to keep in mind, and just let me know something, and to viewers Yeah, also. I'll definitely tell it to you. First of all, I'll start with the last time preparation strategy. How should you prepare at the last moment? See, for simulations is the only area which make you pass or fail. All right. So for simulations, you need to practice a lot, and you need to revise a lot. You need to retain all the concepts in your mind. And believe me, if you have done all these things, simulations are manageable. All right. Then your MCQ should be very strong. Now I come to my experience of Prometric Center. So I would say some little things. Before going to Prometric Center, be calm, because if you are in stress, you will definitely going to lose 5 to 10 marks. So be calm. Be calm, first of all. Then when you go into Prometric Center, they check your specs, they check your clothes that कि कुछ आपके पास ऐसा कुछ है तो नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई मेटल की डिवाइस, ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आप जाते हो, देन यू गो इनसाइड एंड स्टार्ट योर टेस्ट. देन आफ्टर थर्ड टेस्टलेट यू गेट a mandatory break, मैंडेटरी और ऑप्शनल ब्रेक आई वुड से, लेकिन उसमें टाइमर जो है वो स्टॉप हो जाता है. तो मैं हमेशा एक बात कहूंगा, वो ब्रेक आप जरूर लो. मैंने लिया था, लेकिन मैं उसमें बाहर नहीं गया था, क्योंकि रीजन ये हो सकता है, मैं बाहर जाके अंदर आ सकता हूँ, 15 मिनट्स आर इनफ. बट प्रॉब्लम ये हो सकती है कि अगर आपके साथ 4 बच्चे और गए और वो आपसे पहले एंट्री ले रहे हैं, तो उनकी फिर से वो दोबारा से चेकिंग होगी. और अगर 15 मिनट्स आपके निकल गए तो आपका टाइमर अंदर स्टार्ट हो चुका होगा. तो एक बहुत पर्सनल एडवाइस दूंगा कि पानी वगैरह कम पी के जाओ, तो आपको वो 15 मिनट्स में बाहर ना जाना पड़े. आप वहीं पे रहो, अपनी आंखों को बंद करो, थोड़ा सा कि हाँ मेरा सब सही हो रहा है, स्ट्रेस रिलीज करो, और उसके बाद आगे वाले टेस्टलेट्स पे जाओ. तो बस इतना से एक्सपीरियंस है प्रोमेट्रिक का, और बहुत फ्रेंडली माहौल होता है वहां पे जो स्टाफ होता है वो भी बहुत फ्रेंडली होता है. सो दैट्स इट. इससे ज्यादा कुछ बताने की नीड नहीं है. हाँ, जो वहां पे आपको जनरली कलीग्स के ये डाउट होते हैं कि वो कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं या एक्सेल शीट पे ही करना पड़ता है. तो एक कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है, जैसा कि नॉर्मली हम लोग बचपन से यूज करते आए हैं. 2 पेंसिल्स आपको प्रोवाइड होंगी एंड n नंबर ऑफ शीट्स, आप जितनी मर्जी हो उतनी शीट्स रफ ले सकते हो. तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है. और वहां पे सबसे जरूरी चीज ये है कि आपकी नजर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पे नहीं होनी चाहिए, आपकी नजर अपने टाइमर पे भी होनी चाहिए, Very true, ताकि आप very टाइम से अपना एग्जाम कंडक्ट कर सको. अब मैं फिर पुरानी बात पे जाता हूँ, इसी वजह से मॉक जरूरी होता है. Very true, and I got to your point. And student just know कि mock देके जाओगे तो अपना time management skill कहीं ना कहीं enhance कर जाओगे. Do you agree with me this? Exactly. Yeah, Very. exactly. And what you want to say, Anmol, like मैंने अपने काफी स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं, like they wanted to ask some questions, but ये होता है नहीं, हमारे इसमें स्कूल टाइमिंग से होता है कि हमें कुछ सर मैम से पूछना है, बट हम नहीं पूछ रहे हैं, हम हेजिटेट कर रहे हैं, चाहे वो छोटा डाउट हो चाहे बड़ा डाउट हो, बट वो डाउट क्लियर नहीं होने की वजह से उनको मेन एग्जाम में काफी ज्यादा इशू आता है. तो व्हाट यू थिंक कि आपको स्टूडेंट्स को आप क्या बोलना चाहोगे कि अपने डाउट्स को पूछो. एडिशनली डू यू थिंक कि एकेपीआईएस में जो हमारे मेंटोर्स हैं, जो हमारी फैकल्टीज हैं, वो स्टूडेंट के छोटे से छोटा एंड बड़े से बड़ा हर डाउट क्लियर करते हैं सो दैट दे कैन हैव अ क्लियर माइंडसेट एंड विजन टुवर्ड्स देयर स्टडीज एंड एवरीथिंग? इसके लिए तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि एक स्पेसिफिक डाउट सॉल्विंग के लिए भी आपके पास फैकल्टी है. तो इजीली, हाँ. अब अगर कोई इंसान कोई
हेजिटेट सिर्फ वो करता है जिसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जिसने नहीं पढ़ा हुआ है। अब अगर कोई रेंट पेड की एंट्री पूछेगा तो बताने वाले को भी शर्म आएगी और पूछने वाले को भी शर्म आएगी। तो ये तो बेसिक 11th क्लास की है, तो इसीलिए मैंने कहा फंडामेंटल्स अगर आपके क्लियर हैं तो ऐसी छोटी प्रॉब्लम्स आपको आनी नहीं है। और इवन तब आ रही हैं, अगर आपको फिर भी आ रही है तो आप कांटेक्ट करो, मेरे डाउट्स जैसे क्लियर हुए आपके भी क्लियर होंगे। और एक चीज हमेशा मैं कहता हूं कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, दुनिया की कोई भी पढ़ाई हो, यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो। You Very cannot true. totally depend upon teacher. You cannot totally depend on the doubt solver or your mentor, क्योंकि Yeah, उनके पास exactly. hundreds of students हैं। अब अगर आप ये सोचो कि मेरे को हर चीज परोस के दे दी जाए और मैं वही खा लूं, नहीं, आपको खाना बनाना पड़ेगा। तो खाना कुछ ना भी कुछ आपको अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। यस, लाइक स्पून फीडिंग मिल जाएगी, लेकिन खाना डाइजेस्ट तो फिर एट द एंड हाँ, आपको ही करना आप पड़ेगा ना। आप मुझे फिर बीकॉम एग्जाम में और यूएस सीपीए में फर्क क्या रह गया? वो यूएस की डिग्री है, यूएस की सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी है, उसकी डिग्री वेरी है। तो आप ये सोचो कि जितना सर पढ़ा दें या जितने सर ने सिमुलेशन सॉल्व करवाए हैं एग्जैक्ट वही आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको अपनी तरफ से चीजों को करना पड़ेगा, बिल्कुल उसके लिए करना आपको पड़ेगा। कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। उसके लिए आज की डेट में गूगल भी है, चैट जीपीटी भी है, यूट्यूब भी है। तो अगर कोई ऐसा बेसिक सा डाउट हो रहा है आपको, तो आप वहां पे भी जाके चीजों को देख सकते हो। अगर आप वेरी टोटली डिपेंड हो जाओ कि यार मेरा ये डाउट नहीं क्लियर हुआ या ये चीज नहीं मेरे को आ रही है, तो आप ब्लेम नहीं कर सकते हो किसी को, क्योंकि अगर आपने अपना एक्स्ट्रा पुट किया है तो अपने आप रिजल्ट आएगा। And more as proceeding further with the last thing before ending this interview, what you would like to say to your mentor and the AKPIs? I would just say thank you and be with me always. Definitely, we are always there with you. What you would like to say to Shami sir, especially a mentor? Love you, sir. Okay, done. Thank you so much Anmol for your precious time. And जल्दी CPA के 3 और पेपर क्लियर करो, फिर फाइनली CPA अनमोल पांडे बन जाओ, and then we will have another Thank you. interview. And wishing you all the Yeah. very best. Whenever you need help Thank of you so any much, of ma'am. us, we will be there to assist you. Thank you. Yeah, I know. You all are with me, with all the students. I know. Thank you so much. Yeah. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.